Top of this segment, we in fact are beginning on a rather unfortunate note. This breaking news that we are bringing to you from Jhalawar, wherein a big accident has been flagged off from, where a roof of a government higher primary school building collapsed in Pipalodi of Manohar police station area of Jhalawar district, and a large number of school students seem to have gotten buried under the same. This is, remember, in Rajasthan that we're bringing to you the story of. It's a primary school whose roof just came crashing down, burying a large number of school students underneath that very collapse. These are preliminary visuals that we're bringing to you of Jhalawar, and these are the details that we're also picking up at this very point. It's too early to even understand the extent of casualties at this point, but yes, it is a rather unfortunate and horrifying accident that's come to take place in Rajasthan in a primary school. Students were again in the very school as classes had started since morning, and that is when this unfortunate tragedy struck upon them, with the roof coming crashing down. What remains now is ruins and rubble, but also several children trapped under the debris of the same. These are the very first visuals, viewers, that we are bringing to you. You can hear the panic and the cries in the background, and the parents at this given point cannot even fathom what exactly has gone down. Rescue teams will be reaching the spot. They've already begun the rescue operations, and as we can see, locals already stepping in to help and remove whatever debris that they can. But this is the first visual that we have accessed from Jhalawar in Rajasthan, where this primary school's building, the roof of this primary school building has come crashing down. The building collapsed in Pipalodi of Manohar police station. There's a big accident that we are in fact learning of from there. What led to the very collapse? Again, those are questions that one needs to look at later. But right now, all focus, all resources shall be put into bringing out whoever is alive at this given point underneath that very debris, because as we are getting details, and the horrifying details at that, there are children who have gotten trapped under the debris of this collapsed roof. And each minute at this given point counts as we see how things in fact proceed with the rescue operations. Locals already being the first responders. Sharat Kumar joining us at this point on the broadcast to bring us more details. Sharat, a very good morning to you. काफी बड़ा हादसा है, फर्स्ट विजुअल से ही समझ आ रहा है. अभी वहां से और क्या डिटेल सामने आ रही है, आप हमें बताइए. देखिए, ये राजस्थान में झालावाड़ जिला है, वहाँ के मनोहरपुर थाना के पिपलोद गांव की घटना है, जहां पर सुबह सरकार राजकीय विद्यालय में, सरकारी गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे पढ़ने गए थे. 7 के आसपास बच्चे पढ़ रहे थे. बारिश हो रही थी और बारिश के दौरान छत भरभरा के गिर गई, जहां पर बताया जा रहा है सूत्रों के अनुसार 25 बच्चे दबे थे, जिसमें से अपुष्ट खबरों के अनुसार 4 से 5 के मौत की खबरें आ रही है. प्रशासन इसकी पुष्टि नहीं की है, ग्रामीणों के हवाले से है. ईश्वर करे कि सभी लोग सकुशल हों, मगर जिस तरह की घटना हुई है, बिल्कुल हॉरिफिक घटना है, हार्ट रेंचिंग घटना है ये, कि इस तरह से सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ने गए थे और अचानक से ये छत गिर गई. ये इलाका वसुंधरा राजे का इलाका है. उनके बेटे दुष्यंत सिंह यहाँ से सांसद हैं, वो झालावाड़ से ही झालावाड़ पाटन से विधायक हैं. इतना वीआईपी इलाके होने के बावजूद इस तरह की घटना जो होती है ग्रामीण इलाकों में, इस तरह से जर्जर स्कूल है. लगातार हम इसको उठा भी रहे थे कई दिनों से कि भारी बारिश हो रही है और जर्जर स्कूल पड़े हुए हैं. फिलहाल वहां जेसीबी से जो है मलबा हटाया जा रहा है, साफ किया जा रहा है. जो विजुअल्स हैं आप देख सकती हैं, कितना दिल दहला देने वाला है. जो घायल हुए हैं उन्हें नजदीक के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीएचसी और सीएचसी लेकर गया है. मनोहर थाना में ज्यादा घायल हैं, उन्हें झालावाड़ लेकर आया जा रहा है. फिलहाल वहां पर रेस्क्यू का काम चल रहा है और ग्रामीण जो है प्रशासन के साथ मिलकर इस काम को कर रहे हैं. इस तरह के स्कूलें जो राजस्थान में है, वहां पर
कई बार जो हेडमास्टर होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, गवर्नमेंट को लिखते हैं कि स्कूल जर्जर है, मगर कोई ध्यान देता नहीं है। कल ही हमने इस मसले पर वहीं के रहने वाले हैं, बारां बिल्कुल पास में सटा हुआ है, राजस्थान के एजुकेशन मिनिस्टर मदन दिलावर से कल ही हमने ये सवाल पूछा था कि राजस्थान में जर्जर स्कूल हैं, हादसे हो सकते हैं, तो ये कहकर निकल गए, ये कांग्रेस का पाप है, इसे हम ठीक कर रहे हैं। मगर ये बीजेपी सरकार में इस तरह का हादसा हुआ और ये हादसा बिल्कुल दिल दहला देने वाली है। किस तरह से छोटे छोटे जो नौनिहाल हैं, बच्चे हैं, अपने फ्यूचर संवारने के लिए, अपने भविष्य संवारने के लिए, शिक्षा के लिए, पढ़ाई के लिए सरकारी स्कूल में जाते हैं, जहाँ पर ग्रामीण इलाकों में कोई सुविधा नहीं होती है, और इस तरह से सरकारी लापरवाही का शिकार हो जाते हैं। अभी प्रशासन की तरफ से पुष्टि नहीं हुई है, उसका हम इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन का काम जारी है। श्रेया जी, काफी दुखद घटना है और विजुअल से पता चल रहा है कि कितनी दिल दहलाने वाली हादसा वहां पर हुई है। पर शरद, आप हमें ये भी बताएं, आप अभी जिस लास्ट में आप बोले कि रेस्क्यू ऑपरेशंस ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं, हम इस विजुअल से तो हमें पता चल रहा है कि जो लोकल्स हैं वहाँ के, वो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स थे, वो पहले ही जाके जितना भी उनसे हो सकता है वो करने लगे, अपना हाथ बटाने लगे। पर ऑफिशियल रेस्क्यू ऑपरेशंस की बात करें तो कोई टीम पहुंची है वहाँ पे? अभी क्या जानकारी मिल रही है उस बारे में? देखिए, ये श्रेया झालावाड़ से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर है पिपलोद गांव, जहां पर मध्य प्रदेश के बॉर्डर लगता है राजगढ़ का, वहां पर है। फिलहाल वहां पर रेस्क्यू टीम पहुंच गई है, लेकिन शुरुआत में जो ग्रामीण थे वही रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे थे। उनके पास गांव में जो जेसीबी थी उसी से खोद कर निकाल रहे थे। अभी बताया जा रहा है कि प्रशासन वहां पर पहुंच गया है और कलेक्टर एसपी भी झालावाड़ से रवाना हो गए, क्योंकि जिला मुख्यालय से बहुत दूर है। राजस्थान में एक बड़ा इलाका है जहां पर जिले भी बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो ये जिला मुख्यालय से करीब 100 किलोमीटर से ज्यादा होने की वजह से कलेक्टर एसपी मौके पर पहुंचे नहीं है। जो रास्ते में है उनसे जो बातचीत हो पाई है। फिलहाल वहां पर जो मनोहर थाना में रेस्क्यू टीम थी वो पहुंच गई है और मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। जी शरद, और अभी इस वक्त आप बोल रहे हैं कि, और हम देख भी सकते हैं इस विजुअल में, कि जेसीबी फर्स्ट विलेजर्स जेसीबी को लेकर आए थे, वहाँ के जो लोकल्स हैं वो लोग जेसीबी लेकर पहुँच गए थे वहाँ से, और वो दलदल को हटाने की कोशिश कर रहे थे। पर आप करीब एक नंबर दे रहे थे, 25 बच्चे ऑलरेडी वहाँ पे थे। एस्टिमेट्स कुछ आई है कैजुअलिटीज की इस वक्त पर? देखिए, ग्रामीणों और जो लोकल है उनके द्वारा ये अपुष्ट खबर दी गई है, जो कंफर्म नहीं है कि 4 से 5 कैजुअलिटी की, लेकिन अभी तक कलेक्टर एसपी मौके पर पहुंचे नहीं हैं। वहां से गवर्नमेंट की तरफ से कोई नंबर जारी नहीं हुआ है। जिनसे हमारी बातचीत हुई, जो रेस्क्यू ऑपरेशन में, उनसे ही बातचीत हुई है, इसलिए इस आंकड़े को हम कंफर्म नहीं मान रहे हैं। मगर वो उनके हवाले से ये 4-5 कैजुअलिटी की बात की जा रही है। जहां पर कुल स्कूल में 60 बच्चे थे, 25 प्रभावित हुए छत गिरने से, जिसमें से बताया जा रहा है कि जो घायल हैं 25, उनमें से ज्यादातर को वहां पर सीएचसी पीएचसी ले जाया गया है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर, और जो ज्यादा घायल हैं उन्हें झालावाड़ लेकर जाया जा रहा है। हम भी इंतजार कर रहे हैं कि प्रशासन पुष्टि करे कि कितने आंकड़े हैं। फिलहाल तो उनके हवाले से चलाया जा रहा है 4 से 5 कैजुअलिटी। जी शरद, हमें ये सारी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वेल व्यूअर्स, दिस इज इंडीड heart-wrenching at this given point what has gone down, the visuals that we are also being able to access. The numbers aren't yet official, as my colleague also mentioned, but yes, there are casualties that we are looking at, and children had already come into school for their classes this morning, and not in their worst of nightmares would they have imagined a situation of this befalling upon them.